हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे अगेन अ वंडरफुल बुक बाय द नेम ऑफ कैमरा लुसिडिया विच केम इन द ईयर 1980s बाय द रोलैंड बार्थ्स. He was a uh, French philosopher who talked about the death of the author, later talked about the concept called as myth. He also wrote many books by the name of S and Z. Then he was a semiotics. He was a semiotic, also called as semiotics, the one who studies sign and process and communication, the meaning behind the symbols. Um, Highly influenced by Derrida itself. So this is one of the famous book. It's about the philosophy of photography. It's not related to the language or any literature. This book is mostly about philosophy of photography. Philosophy of photography. So the genre it touches is basically personal essay, semiotics, and aesthetics. Why Barthes wrote this book? The reason is because the death of her mother when he wrote this. Camera Lucidia. This personal loss published him to explore how photography carry emotional meaning, memory, and even death. Unlike his earlier structuralist work, this book is intimate, philosophical and full of emotions. काफ़ी ज़्यादा intimated है, philosophical है और काफ़ी emotions से ज़्यादा भरा हुआ है. अगर हम बात करें philosophy की तो philosophy काफ़ी ज़्यादा divided है upon the contemporary, whether upon the geographical area. For example, Eastern is more about unification, oneness, Brahm, and all this. If I talk about the British side, it's more analytical, more logical, more rational. And if I talk about European, it's very much contemporary, full with emotions and moods. It talks about a lot of anxiety, happiness, sadness, and all about this. If I talk about um, go towards the America, many people there hardly cares about all this because it's all about capitalism. There's one more guy, very famous by the name of Richard Rorty. I will make a video about this very soon. He was an American philosopher and historian, and very profound thinker of his time. Died in 2007, born in October 2004, 1931. American Richard Rorty. Nevertheless, this video is not about him, so I will discuss about Richard Rorty in the upcoming videos. So let's summarize this book. So part one is about thinking about photography, stadium, and pun. There's one more word he talks about: stadium, studium, not stadium. STUDI, studium, and pun, पंचम पंचम. देखो भाई, अब इसने जो है कि रोनाल्ड बार्ट्स की मदर की जब डेथ के बाद क्या हुआ कि इसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा. तो ये दो तरह से फोटोग्राफी के दो एंगल्स को देखता है. एक देखता है स्टूडियम. ठीक है, अब स्टूडियम क्या चीज़ है? स्टूडियम the general cultural or informative interest in photography. For example, you admire a historical photo because of its context and composition. It's about what the photo is showing and why it's interesting intellectually or like politically. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल पेरिस की जो वो क्या है टावर है उसको देखते हो. ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि भाई वो भी किसी ने उसको गिफ्ट किया था. ओके, तो और कितना ज़्यादा सुंदर है, लाइटें ऑन होती हैं, तो आप वो फ़ोटो देखते हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हो, एडमायर करते हो उसकी हिस्ट्री के बारे में. एंड वेरी इंटेलेक्चुअली प्रोफाउंड और पॉलिटिकल लगती है वो वाली, उस एंगल से देखना. ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें
I don't know how to say this, but let me see if I can find out. Punctum, 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 punctum. Punctum का मतलब है पर्सनल. वैसे पंक्टम का मतलब एक और चीज़ मेरे को पता चली, हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स. इन जनरल सेंस इट रेफर्स अ स्मॉल पॉइंट और डॉट, especially anatomy, where it refers to the tiny opening of टीयर डक्ट. हमारे नाक के पास एक छोटी सी ओपनिंग होती है, या फिर हमारी आँखों के पास एक छेद होता है जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो उसको अभी पंक्टम बोलते हैं. तो इसने भी पंक्टम वही चीज़ बोली है कि जो पंक्टम है, इट्स अ वेरी लाइक इट्स अगेन अ डिफरेंट एंगल ही इज़ टॉकिंग अबाउट. ठीक है, मतलब देखने का तरीका अलग है. जैसे इसने पहले बताया कि मैं देखता ही अलग तरह से हूँ, लाइक राइटरली टेक्स्ट का मतलब यही है कि अलग तरह से देखना. तो उसी तरह से इसने बोला कि जो एक फ़ोटो होती है वो भी बड़ी तरह से पर्सनल होती है, इमोशनल होती है. वूंड और स्ट्रिंग होते हैं डैट स्ट्राइक्स द व्यूअर. ठीक है, इट्स नॉट व्हाट एवरीवन सीज. आप जब वो पिक्चर देखते हो तो वो सब नहीं देखते. इट्स व्हाट यू फील व्हेन लुकिंग एट द फोटो. आप जब उस पिक्चर को देखते हो वो सिर्फ आपको ही दिखती है, बाकियों को नहीं दिखती. ये एक सब्जेक्टिव होती है, सडन होती है, एंड ऑफन अनकॉन्शियस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर पे अगर अलग तरह की 3D पिक्चर होगी, तो या पिकासो की आप पिक्चर देखोगे, हर एक बंदे को अलग तरह से दिखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्मॉल डिटेल, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हैंड, अ ग्लास, अ टू शो दैट हॉन्ट्स यू फॉर नो क्लियर रीज़न. ठीक है, तो स्टोडियम इज़ वट यू अंडरस्टैंड, पंक्टम इज़ वट टचेज़ यू. ठीक है, आपको जो चीज़ छू जाए, कोई पिक्चर हो या कुछ ऐसा हो. फोटोग्राफी एंड डेथ. Barth sees a strong link between photography and morality. He says every photo, even of someone alive, implies they will die one day. आपकी वो मदर की फ़ोटो हो सकती है. आप जब अपनी खुद की फ़ोटो देखते हो, या फिर आप जब अपने फादर की या अपने भाई की या फिर आप किसी की भी आप फ़ोटो देखते हो जो आपके बहुत नियर एंड डियर होता है, आप जब उस पिक्चर को देखते हो वो इम्प्लाई करता है, वो आपको बताता है कि जो फ़ोटो में बंदा है या डॉग है या पेट है, आपका कुछ भी है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स रियली लाइक close to you and hits you really hard. So a photo becomes a certificate of presence and simultaneously a memento mori, a reminder of death. ठीक है. His mother's photo, the एक बड़ी अच्छी फ़ोटो है, द विंटर गार्डन फोटोग्राफी. ठीक है, उसकी मम्मी की एक फ़ोटो है. अगर आप उसको जाके खोलोगे, देखोगे गूगल पे, तो उसमें क्या है कि उसने लाइक वेट, उसमें क्या है कि एक फ़ोटो है उसकी मम्मी की. ठीक है, तो उसी का रेफरेंस अगर आपने गूगल खोल लिया होगा अभी तक, सो तो रोलैंड बार्ट्स को एक फाइंड्स वन फोटो ऑफ हिज मदर दैट ट्रूली टचेज हिम, हर एज अ चाइल्ड इन विंटर गार्डन. तो उसमें बताया कि ही नेवर शोड इट टू द रीडर्स. उसने कभी अपने रीडर्स को ये वाली फ़ोटो नहीं दिखाई, पर वो अवेलेबल है गूगल पे अगर आप जाके देखोगे. दिस फोटो हैज़ अल्टीमेट पंक्टम. ओके, इट रिवील्स हर एसेंस, हर ट्रुथ. उसके जो अंदर की जो एसेंस है उसके बारे में वो दिखाता है. एसेंस का कंसेप्ट जो है, एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो अगेन ये वही स्टार्ट होता है इसका, लाइक ओरिजिनेटेड, पर है तो लैटिन वर्ड, पर ये स्टार्ट अब वहीं से हुआ है, लाइक एंशियंट रोमन टाइम्स. इन ऑर्डर टू लाइक ट्रांसलेट ग्रीक
अगर आप ग्रीक वर्ड से देखें तो ये इक्वल्स टू लेट्स फॉरगेट आउट, एसेंस होता है एक बेसिक जो अंदर की चीज़ है, कि अगर आपका सारा एसेंस बोले तो कि जैसे आपकी आइडेंटिटी है, आप एक फादर भी हो, मदर भी, आप फादर भी हो, भाई भी हो, फ्रेंड भी हो, ठीक है, कज़न भी हो, अगर ये सब कुछ हटा दें तो एक अंदर की चीज़ बचती है जो आपकी है, उसको बोलते हैं एसेंस। तो इसमें बताया कि जो पंक्टम अल्टीमेट पंक्टम है उस पिक्चर की, उसकी मम्मी की, वो दिखाती है एक ट्रू एसेंस उसके बारे में और सच्चाई के बारे में। फोटोज़ वर्सेस अदर आर्ट्स, तो इसमें बताया है कि जो रोलैंड जो है बार्ट्स, वो क्लेम करता है कि पेंटिंग कैन इंटरप्रेट और आइडलाइज रियलिटी, ठीक है। Cinema movies tell story and change with time, but photography freezes a moment forever, कि वो बिल्कुल या बर्फ़ की तरह जमा देती है, ठीक है। इट्स बोथ रियल एंड घोस्टली, बहुत रियल है और स्केरी भी है, काफ़ी ज़्यादा स्पूकी भी है। ही सेज photography is that has been a direct testimony to a moment that truly happened, even if the subject is now gone. Okay, that has been, that has been, ठीक है। भले ही वो चीज़ गायब हो गई है, पर वो एक सही में हुई थी, एंड पर वो अब नहीं है, ठीक है। सो इट्स ट्रूथ एंड सब्जेक्टिविटी की बात करें जाए तो रोलैंड बार्ट्स जो है restricted the idea of the universe theory of photography. He's not trying to be a scientific out here. He brings personal. He wants to talk about how photo affect him. So, camera lucida is not just about photography. It's about loss, memory, time, and death. ओके, सो जो इस बुक में लिखने का तरीका है, इट्स वेरी पर्सनल, पोएटिक, मेडिटेटिव, लेस एकेडमिक, मोर इमोशनल, अनलाइक हिज स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग एज ही वाज स्ट्रक्चरलिस्ट टू। उसकी जो बुक है मिथोलॉजीज, दैट इज बार्ट्स, दैट इज़ बार्थ द ह्यूमन, नॉट जस्ट अ थ्योरिस्ट, ठीक है। इसकी अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक इंसान की तरह अच्छी तरह दी गई है, डाइसेक्ट नहीं किया है, डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया है, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल बुक है। सो एक कुछ कोट्स हैं जो इसमें मेंशन किए है कि व्हाट द फोटोग्राफी रिप्रोड्यूस टू इन्फिनिटी हैज़ अकर्ड ओनली वंस। Second quote, the photography is literally an emanation of the Zephyr. Again, third quote, the name of photography's nonym will therefore be that has been. Why is this still well relevant? It helps shift photography studies from technical to emotional. It talks about a human existence, memory, representation. I hope आप इस बुक के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ो, समझो. I think this would be suitable for people who are more interested in pursuing art, photography as an art. Thanks.